What should be the punishment given to a spoilt brat who takes out a Scorpio with his sister to make reels, and then his rash, irresponsible, illegal behavior leads to the killing of another young man? That is what has happened in Delhi's Dwarka area, where the killing of 23-year-old Sahil and his heartbroken and angry mother's fight for justice has broken every heart. In a moment from now, we'll be talking to the mother of Sahil. She's somebody who reached out to the country on social media. She's asking for justice for her son. She's asking why this so-called teenager at the wheel should be let off without any punishment. If he can't be arrested, this is me asking, why aren't his parents being arrested? I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. Before we speak to the mother of 23-year-old Sahil, a heartbreaking story, tragedy, a horrific killing, I want you to reflect on how unfair it is that the boy who did this, and we are bound by law to not reveal his identity because he's allegedly underage. The boy who did this, these are the reels he was making when he went for a so-called joyride with his sister. And with his attention on the reels, this nonsense that he was up to, he shouldn't have even been at the wheel. His rashness, his criminality resulted in the killing of a 23-year-old man who had dreams for his life ahead of him. The son of a single mother, Sahil Dhaneshra, had these words written on his wall: 2025 will be my year. He had many dreams. He said other people dreamt of flying first class, but he was going to be that boy who owned a plane. All of those dreams have come to naught because of the spoiled criminal behavior of a teenager who's now going to get away because he's underage. I want to now bring into this conversation Sahil's mother. We all first saw her when she released the video appealing for justice on social media. मेरे पास वर्ड्स नहीं है इना जी, मैं क्या बोलूं इस समय. आप एक माँ है, एक सिंगल मदर है, आपकी पूरी जिंदगी अपने बेटे के इर्द गिर्द सेंटर थी. सबसे पहले तो दिल से आपको कंडोलेंसेस और कहना चाहती हूं कि आपके साथ हम खड़े हैं. आई एम सो सॉरी मैम. ये आपकी, आप बोलिए, आप ही बोलिए, मुझे कम बोलना चाहिए, आप बोले. मेरे पास कुछ बच्चा नहीं है बोलने के लिए, मैं बहुत कुछ बोल चुकी. आप इस रील में देख रहे हैं कैसे उड़ाया उसको, सेकंड में, 1 सेकंड में उड़ाया, 1 सेकंड में. ओह, 1 सेकंड में उड़ा दिया मेरे बच्चे बिना गलती के. वो अपनी लेन में चला रहा है, तमीज से चला रहा है, सही चला रहा है. ऑफिस जा रहा था मेरा बच्चा, मुझे सपोर्ट करता था काम में. ये देखो कैसे 1 सेकंड में उड़ा दिया उसको हवा में. मुझे लोगों ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर जाके नीचे गिरा. Can you imagine the pain he had at his last breath? And these people, and they didn't let me hug him for the last time also. My child was in pain. They declared him dead. I could not hold my child for the last time, even in his last breath. I kept begging, let me hug my child. Let me take him to the private hospital. I kept begging. Nobody gave me the body to take him to the hospital. Why did they not let you? This is so heartbreaking. I'm so sorry. But why did they not let you hold your child? Why? Because they put him on the stretcher in the government hospital where they took him for the last check. And hospital
लेट मी टेल यू अबाउट द हॉस्पिटल ऑल्सो। ये जो हॉस्पिटल के नाम पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, which is of no use, just building is there, no doctors, no surgeons, no machinery completely. It's been years. वो ढांचा हॉस्पिटल के नाम पे बना के खड़ा कर दिया अपनी कामों की काउंटिंग कराने के लिए। हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है द्वारका में, जिसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि सिस्टम में बहुत जगह कुछ कंप्लीट होता ही नहीं है। फिर जब कुछ सामने आता है फिर रेड पड़ती है, फिर सरप्राइज विजिट्स होती हैं, फिर सिस्टम की खुद आंखें खुलती हैं कि हमारा ये कमी है, हमारी ये कमी है। बहुत कुछ होता है, होता ही रहता है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को। उस सो कॉल्ड हॉस्पिटल में जो है मेरे बच्चे को ले जाया गया, और वहां पे फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरे चिल्लाने के बाद, मेरे काफी चिल्लाने के बाद जो है उसकी ईसीजी की गई एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि फॉर्मेलिटी करने से पहले ही उसको पैकेट में डाल के बंद कर दिया गया था उसका मुंह। मैं चिल्ला रही थी, उसका मुंह मत बंद करो, उसकी सांस घुट रही है। और मैं बोलती रही कि मेरे को अपने बेटे को मणिपाल ले जाना है, वहां से मणिपाल वाज द बेस्ट एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल। मैं बोलती रही कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दो। आई केप्ट बेगिंग, दे टुक द चार्ज ऑफ माय बॉडी। 3 घंटे अंदर पर्चियां बनवाते रहे, मैं 3 घंटे बाहर हाथ पैर पटकती रही जमीन पे। मैं अपने मैं बोलती रही मेरे बच्चे के पास जाने तो मुझे, उसको दर्द हो रहा है। मैं चिल्लाती रही, आधा हॉस्पिटल खड़ा होकर देखता रहा। लेडी गार्ड ने मुझे बाहर फेंक दिया, धक्के मार के बाहर निकलवा दिया कि बाकी पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। किसी को कोई नहीं पड़ी थी कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरे बच्चे की लास्ट क्लासेस चल रही, किसी को कुछ नहीं पड़ा था। उल्टा देवर से कि इनको बाहर भेजो, बाहर भेजो। देवर सो क्रूअल, वहां के लोग भी, वहां के अटेंडेंट्स, देवर सो क्रूअल कि इनको बाहर भेजो, तो बाहर भेजो। आपको लगता है कि अगर आपको हॉस्पिटल में ठीक ट्रीटमेंट मिलती तो बच्चा बच सकता था? साहिल आज जिंदा होता, आपके साथ होता? There is no one who can decide who is dead and who is not. It's machinery, it's system, हमारी वो सुविधाएं जो डिसाइड करती है। मैं अपने बच्चे को एक लास्ट टाइम देना चाहती थी, मेरा राइट था। मेरे बच्चे की सारी जिंदगी मैं अपनी तसल्ली के लिए तो ले जा सकती थी, इतना राइट तो था मेरा। ये उसको बॉडी को कब्जा करके बैठ गए। 3 घंटे में चिल्लाती, मैं 3 घंटे हाथ पैर पटक पटक के थक गई। उसके बाद उसको मॉर्चरी ले मॉर्चरी में जाके डाल दिया, मेरे को आग नहीं करने दिया, मेरे बेटे को मेरे को पकड़ने नहीं दिया, मेरे मासूम बच्चे को मुझे उसके मुंह को हाथ नहीं लगाने दिया, मुझे छाती से नहीं लगाने दिया उसको, मेरे बच्चे को। उसको कितना पेन में होगा, उसकी आत्मा भी तड़प नहीं होगी, उसकी आत्मा भी मम्मी मम्मी चिल्ला रही होगी। इन्होंने मुझे छूने नहीं दिया, मेरे मासूम बच्चे, उसके पास तो मेरे अलावा कोई नहीं था ना, मैं ही उसकी माँ थी, मेरी बाप। मेरे बच्चे को छूने नहीं दिया, मुझे टच भी नहीं करने दी। मैं लास्ट टाइम में भी अपने बच्चे को गले से नहीं लगा पाई। आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जिस लड़के ने ये किया, जब आप देखती हैं कि उसको बेल मिलता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अंडर एज है, और जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा था, मैं ये सोच रही थी इफ ही कांट बी अरेस्टेड बिकॉज ऑफ आवर लॉ ऑन जुवेनाइल्स, हिज पेरेंट्स शुड बी अरेस्टेड। जिस पेरेंट्स ने ये गाड़ी ले जाने की इजाजत दी इस लड़के को रील्स बनाने के लिए, पेरेंट्स को अरेस्ट करिए, ये मुझे ऐसा लगता है। मैम आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगता है, ये तो सिस्टम को देखना है। अगर वो जुवेनाइल, उसको बचाने के लिए जुवेनाइल बताने का लॉ हमें पढ़ा सकते हैं, तो उसको अरेस्ट करने के लिए भी तो सेम लॉ है ना, कि अगर वो जुवेनाइल था तो जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट होना चाहिए। तो वो लॉ कहाँ चला गया, फिर वो आधा लॉ कहाँ चला गया, वो कहाँ है, वो कहाँ है? अपनी ही स्टेटमेंट का जवाब दे दें ये लोग।
जो भी ऐसा कह रहा है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, बट मैं पूछ रही हूँ, जो लॉ हमें पढ़ाया जा रहा है वो आधा हमें पढ़ाया जा रहा है, तो जो आधा खुद पढ़ना था वो कहाँ गया? वो कहाँ है? क्या आपने अपील की सोशल मीडिया पे, पूरा देश अब आपका केस जानता है, आपकी ट्रेजेडी जानती है, आप आपके लिए जस्टिस, व्हाट विल जस्टिस लुक लाइक? आप अपने बच्चे की, थोड़ा सा अगर वो कागज को आप ऊंचा उठाएं, उस पे लिखा भी है जस्टिस फॉर साहिल। Yes. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट वुड जस्टिस लुक लाइक? अगर क्या क्या मानना है इस वर्ड का टुडे फॉर यू मैम? Justice will be this family, entire family is culprit because लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो उसकी बड़ी बहन है, शी इज नॉट जुवेनाइल, वो उसके साथ थी उसके एक्ट में, शी इज इक्वली पार्टिसिपेंट in this या act. Being या female, if she is not sensitive, that shows the culture they give to their children, that shows the values they give to their children, the past history of driving the vehicle like this with past challans in UP and Delhi. I could not find in more states. There must be many, I'm sure. These are the just two states we could figure out till date. Since it was very short notice and I posted the video, या उसके दो ही दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया, तो मेरे पास जितना समय था मैं जितना निकाल सकती थी। आई एम स्टिल इन प्रोसेस, क्योंकि जहां जहां से जो जो निकलेगा अब सब कुछ आएगा अपने आप। और अब आप लोग कह रहे हैं भेजेंगे। कि आप कह रहे हैं लड़की गाड़ी में बैठी थी, शी इज नॉट अ माइनर? शी इज नॉट माइनर, वो उसकी बहन है, उसकी भी एज प्रूफ चेक किए जाए, शी इज इक्वली कल्प्रेट। इसका बाप भी कल्प्रेट है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होने की वजह से उसको सारे रूल्स पता है, वो आज तक कानून के साथ खिलवाड़ करता आया, तो उसको लगा कि ये चलता ही रहेगा। It should stop here. It should end. This entire family, on the basis of their past records and challan, and all majorly over speeding and rash driving and all this, and without license. So you are saying that there is a long history of traffic violations with Yes. this family? Yes. Yes. और जिस दिन हमने ये चलान्स निकाले हैं, उसके जी अगले दिन मैक्सिमम चलान्स पेड ऑफ हो गए एंड जस्ट 2 वर लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब 1-2 दिन के अंदर सारे चलान पेड ऑफ हो गए, जिस दिन हमने ये डाउनलोड करे हैं उसके बाद। और कल फैमिली मैंने ने क्या, हाँ बताइए, कल आप कल जो है, कल मैंने ऑनलाइन फोटो लिया है इनके यूपी के चलान्स का, जो कि मेरे फोन में है। आई विल गिव इट, फोटोज भी मैं दे Yes. दूंगी। जी एंड जस्टिस वुड बी, एज यू सेड, व्हाट विल बी जस्टिस? दिस जस्टिस वर्ड विल बी, मेरे बच्चे को जस्टिस देने के लिए ये लॉ चेंज होगा, ये पूरी फैमिली बिहाइंड बार जाएगी, इनकी बेल नहीं होगी। आई डोंट एक्सेप्ट दिस लॉ। वन फाइनल स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलेगा, ये लॉ चेंज होगा। कोई माँ दोबारा एक्सीडेंट और इस तरह से अपने बच्चे को रोड पे पड़ा हुआ लावारिस नहीं देखेगी। किसी रईसजादे को ये अथॉरिटी अब नहीं होगी कि वो रोड पे जाके अपनी तफरीबाजी करने के लिए, जो है अपनी अय्याशी करने के लिए और स्टंट मारने के लिए और इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए जो है दूसरों के बच्चों को कुचल दे, उनकी जिंदगियां कुचल दे, उनकी दुनिया उजाड़ दे। ये दोबारा नहीं होगा। ये मेरे बेटे को जस्टिस तभी मिलेगा जब लॉ चेंज करके ये पूरी फैमिली बाहर जाएगी और एक स्ट्रिक्ट लॉ इस केस में इस फैमिली के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉ बन के एक्शन लिया जाएगा, और वो इसी फैमिली पे इम्प्लीमेंट होगा, नॉट फ्रॉम द फ्यूचर, राइट फ्रॉम हियर, राइट फ्रॉम साहिल जस्टिस। I support you every. I agree with you totally that the family, the parents, if the law doesn't allow the minor to be sent to prison, then let the parents take accountability and be sent to prison. मैं आपसे पूछना चाहूंगी to tell us a little bit about साहिल. हमने वो तस्वीरें देखी, कैसे उनके कमरे में उनकी ड्रीम्स के बारे में लिखा था, यू नो, अदर पीपल वांट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वांट टू ओन द प्लेन. उन्होंने
उनके ये सारे सपने थे. You have been a single mom to him, and he used to help you in your work also. Talk a Yeah, little bit about his dreams, ma'am. I feel we want to know him better. he was super ambitious child, super ambitious, very kind-hearted, very helping. पेट्स को इतना प्यार करता था. हमारे यहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग है, वो इतना गंदा रहता है, वो ओल्ड है वो डॉग, वो घर में आ जाता है. मैं इतना चिल्लाती थी कि इसको कीड़े हैं, तू इसको कमरे में क्यों मत. पेट्स के कीड़े वीड़े गिर भी जाते हैं, हमें नहीं भी पता चलते. मैं इसको इतना गुस्सा करती थी कि भाई तू इसके लिए अलग से एक गद्दा बनवा ले, तू उस पे सुला लिया कर इसको. वो बच्चा, वो डॉग जब भी मेरे बेटे को देखता था उसके साथ घर में आ जाता था. पूरी सर्दी हीटर चला के उसको अपने कमरे में सुलाता था, मेरे से छुपा के. रोड पे कहीं पे कोई कुत्ता बिल्ली, किसी की टांग टूट जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, किसी को चोट लग जाए, मेरे से डांट खा खा के उनको हॉस्पिटल ले लेके भागता था. मम्मी एक बिल्ली को चोट लग गई है, एक बिल्ली मर गई है, उसको गाड़ के आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ. यहाँ पे पूरे नेबरहुड में यू आस्क अबाउट माय चाइल्ड, ही वाज लव्ड बाय एवरीवन, एवरीवन. जिस स्कूल में वो सेकंड थर्ड में पढ़ा है मेरा बच्चा, वो टीचर्स मुझसे ज्यादा पेन में है. वो सेकंड थर्ड क्लास से सबका लाडला, सबका लाडला. एक बार उससे कोई मिल लेता था तो उसको प्यार हो जाता था उस बच्चे से. वेरी काइंड हार्टेड सैंड सोल, हेल्पिंग एवरीबॉडी एवरी टाइम. मेरे से इतनी स्कोल्डिंग मिलती थी उसको. मैं कहती थी तेरे को पूरी दुनिया के लिए टाइम है, अपने घर, अपने काम और अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है. वो कहता था मेरे दोस्त मम्मी बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं पता. एंड आई सॉ इट, आई सॉ इट ऑन द लास्ट डे व्हेन ही वाज लीविंग द वर्ल्ड. क्रिमिशन के टाइम पे मेरी अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स गिनती के थे, लेकिन उसके दोस्त 70-80 फ्रेंड्स, कौन कौन कहाँ कहाँ से, उनकी फैमिलीज, उनकी सिस्टर्स. टिल डेट इसके दोस्तों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा. बच्चे रोज सुबह आ जाते हैं, मुझे दिन में 10 बार कॉल करते हैं, आंटी कुछ चाहिए मेरे को फोन कर देना, मुझे फोन कर देना आंटी, मैं लेके दे जाऊंगा, आंटी मुझे बता देना कुछ चाहिए. That's what my son earned. Very optimistic, very optimistic. I'm so These sorry. were the It's so. motivations. These were the motivations and अपने गोल्स जो उसने अपने सामने उठते बैठते सोते जागते वो अपने गोल्स को देख सके, इसलिए उसने इनको. उसने छत पे लिखा, अपने कमरे की छत पे लिखे थे. यस, यस. मैंने उससे पूछा ये तूने ऊपर कैसे लिखा है, कह रहा मेरा रूम है, बस लिख लिया मैंने. मैं अपने लिए गोल सेट कर रहा हूँ. 2025 will be my $10 lakh per year. Have the parents of the so-called teenager who did this to your son, have they tried to reach out to you? Nobody tried to reach out to me for 14 days. After 14th day, I posted the video on Twitter. 14 दिन आप अकेली थी. जी, मैं सिर्फ ट्विटर पे वो वीडियो पोस्ट करने से 2 या 3 दिन पहले ही एसीपी और डीसीपी को मिलने गए, 3-4 दिन पहले. और वो तो भी मैं तब क्या रिस्पांस था आपके वीडियो रिलीज से पहले? पुलिस का क्या रिस्पांस था? only I was given assurance कि from the ACP that fair investigation will be done and everybody was waiting for the postmortem report. So we have received the postmortem report yesterday, that too the soft copy. And those are terrible details, ma'am. I shouldn't be recounting them to a मैंने नहीं mother. पढ़ी, मैं नहीं पढ़ सकती उसको, मैंने नहीं पढ़ी. फिर मैं नहीं बताऊंगी. प्लीज मत बताइएगा मुझे. मैं नहीं बताऊंगी. मैंने खुद भी मैंने रिसीव रिसीव जरूर करी है, पर मैंने पढ़ी नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती उनको. नहीं, मैं नहीं मैं अपने बच्चे को जिस हालत में रोड पे देखा है, मेरे को वो देखने से पहले मर जाना चाहिए था. मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी माँ का नहीं हो सकता. उस हालत में, जिस हालत में मैंने अपने बच्चे को देखा है, अगर मैं वो वीडियो, आप लोगों को वीडियो सर्कुलेट की थी, वो लोगों को मेरे बच्चे की लास्ट उसकी क्या दशा की है वो देखी भी नहीं जा रही.
तो उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, उस बच्चे को जब चोट लगी उस पे क्या बीत रही होगी, अगर उसकी लास्ट फोटो देखने में इतनी दर्दनाक है, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जिसको 4 घंटे इन्होंने मेरे को गले से नहीं लगाने दिया, मेरे बच्चे को छीन लिया, वो मेरे को एक लास्ट ट्राई भी नहीं करने दिया। ये मेरे बच्चे पे कैसे कब्जा जमा सकते हैं? आई हैव नथिंग टू से मोर। मैं I'll let you, I सिर्फ आपको जाने से पहले बोलना चाहूंगी कि हम जितना हो सके आपके साथ हैं, जो कर सके करेंगे, इतना ही मैम, कह सकती हूँ। जी मैम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर, मैं सारी जी। मीडिया को एक ही बात बोल रही हूँ, ये खबर बना के अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम मत कीजिएगा आप लोग। इसको ठंडा थोड़े दिन बाद भूल मत जाइएगा। आप लोग सब एश्योर कर रहे हैं, मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को निभाइएगा। मेरे साहिल की जब जब भी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें एंड तक मेरे साथ रहिएगा। इसको खबर बना के ठंडे बस्ते में मत डाल देना प्लीज। मीडिया यही करती है, आपके पास रोज नए अपडेट होते हैं, रोज नई कवरेज होती है, तो पुरानी खबर को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है, दिस इज अ मूवमेंट पूरे देश के बच्चों को बचाने में। प्लीज हेल्प, डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस। आई एम श्योर यू आर आल्सो अ मदर, you might be a mother, you are a female, only one female can have the same emotion for another female. Please, I beg you, You don't don't have to leave beg me, me, ma'am. You don't have to don't beg me, leave but me, don't leave me in between. आज सारे आ रहे, थोड़े दिन बाद सारे भूल जाएंगे, नई नई खबरें कवर करेंगे। डोंट लीव मी इन बिटवीन। we will not leave you, इतना ही कह सकती हूँ। पर आप भी Keep your, हमें याद, keep your promises. you remind us of our duty and you remind us how we move from one headline to the other. और मैं आपकी बात से इनकार भी नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारी गलती है, ये हमारी प्रोफेशन की एक गलती है और इस गलती को मुझे मानना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है, वो हिम्मत जो आपने दिखाई है, उसको हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। हम साहिल की the life he's been robbed of, we cannot let that go waste, ma'am. God bless you. I want to God see, bless Sahil. I want to see how media keeps the words till the end. Yes. आप सिस्टम में कमियां निकाल रहे हैं, अपने सिस्टम की कमी को भी याद रखिएगा प्लीज। बिल्कुल, it should not be dead. This sacrifice of my child should not be dead. It should not go waste. Absolutely. It should not go waste. Absolutely. I'm so sorry. मैं अगर बीच में मर भी जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पेन मुझे कितने दिन जीने देगा। I beg media to take it to justice. अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो I ask media to take it forward to get my Sahil justice and save the nation's children. Please. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. And thank you. Thank you. Thank you. Take care. God bless. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.